بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور پرشنسائیں اس ایشور کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے، جو کہ اس پوری کائنات کا، اس برہمانڈ کا بنانے والا ہے، اس کو چلانے والا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے ان تمام نیک بندوں پر جنہوں نے ہمیشہ مانوتا کی رچنا کے لیے، انسانیت کی کامیابی کے لیے، سماج کی ترقی کے لیے اپنی زندگی کا قیمتی وقت لگایا۔ اسٹیج پر موجود راجستھان کے مختلف اور مشہور شخصیات، جناب قاری معین الدین صاحب، جناب پیکر فاروق صاحب، ناظم الدین صاحب، محترمہ کویتا شریواستو جی اور دیگر ذمہ داران، اور یہاں موجود راجستھان کے مختلف مقامات سے تشریف لائے ہوئے چھاتروں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام، جیسا کہ آپ سنتے آ رہے ہیں، بے گناہ نوجوانوں کی رہائی کے لیے، وہ نوجوان جو کہ اپنی جوانی کا قیمتی وقت جیلوں کے اندر بتا رہے ہیں اور ان کا جرم کچھ بھی نہیں ہے، ان کی رہائی کے لیے اور رہائی کے بعد ان کو سماج میں ایک مقام اور ایک جگہ دلوانے کے لیے اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کی طرف سے آج پورے ملک بھر میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ صرف راجستھان میں نہیں بلکہ ہندوستان کے تمام اسٹیٹس کے اندر آج دھرنا پردرشن اور ریلی اور پروٹیسٹ اس ٹاپک پر، اس تھیم کو لے کر کیا گیا ہے کہ بے گناہ نوجوانوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ دیکھیں کہ آج یہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ بات ہو سکتی ہے کہ اس میں بڑی تعداد مسلم نوجوانوں کی ہو، لیکن معاملہ یہ نہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ صرف مسلمانوں کی سمسیا ہے۔ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہاں پر سوائی سنگھ جی موجود نہ ہوتے، یہاں پر کویتا شریواستو جی موجود نہ ہوتی، جو سام ویدی جی ہیں وہ یہاں پر موجود نہ ہوتے، بلکہ یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے دیش کی سمسیا ہے کہ ہمارے دیش کو جو لوگ ترقی کی طرف لے جا سکتے ہیں، وہ نوجوان جن کے کندھوں پر اس دیش کا فیوچر، اس دیش کا مستقبل، بھوشیہ رکھا ہوا ہے، اگر وہ نوجوان اپنی جوانی کے قیمتی وقت کو اگر جیلوں کے اندر بتا دیں گے اور باوجود اس کے کہ کوئی گناہ ان سے سرزد نہ ہوا ہو، کوئی گناہ انہوں نے نہ کیا ہو، وہ بے گناہ ہو، اس کے باوجود بھی اگر ان کی جوانی اگر جیلوں کے پیچھے، سلاخوں کے پیچھے گزرتی ہے، تو یہ ہمارے دیش کے لیے، ہماری دیش کی سرکار کے لیے بڑی شرمناک بات ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ وہ نوجوان جن کو ہم کو سنوارنا چاہیے تھا، جن کی زندگی کو ہم کو خوبصورت بنانا چاہیے تھا، ان کی زندگی کو ہم اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیں۔ ان کلیوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے مسل لیں جو کہ ایک پھول بن سکتے تھے، جو کہ پورے اس گلشن کو مہکا سکتے تھے۔ اگر ہم خود ان کلیوں کو مسلنے لگ جائیں، ہم خود ظالم بن کر ان کو کچلنے لگ جائیں، تو پھر یہ ہمارے لیے، ملک کے عوام کے لیے بھی اگر وہ اس ظلم پر آواز نہ اٹھائیں تو یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ یہ سچ ہم کو بولنے کی ضرورت ہے۔ ملک کے اندر بہت کم ایسے لوگوں کی سنکھیا ہے جو کہ سچ کو اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی تعداد اس بات کی گواہی دے رہی ہے، اس بات کا ثبوت ہم کو دے رہی ہے کہ کتنے لوگوں کو اس ایشو سے تعلق ہے، کتنے لوگوں کو اس بات کی پرواہ ہے کہ اس ملک کے نوجوان جیلوں کے اندر کیوں ڈالے گئے ہیں، کیوں ان کی جوانی کا وقت باوجود اس کے کہ وہ بے گناہ ہیں جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے گزار رہے ہیں۔ اگر اس کی پرواہ لوگوں کو ہوتی تو یہاں پر ایک بڑی تعداد ہماری موجود ہوتی۔ یہاں کوئی پروگرام کروا لیجئے، کسی سیاسی پارٹی کا پروگرام ہوتا تو شاید یہاں پر ہم کو قدم رکھنے کی جگہ نہ ملتی۔ جہاں پر فالتو کی باتیں کی جائیں، لوگوں کو دھوکے دینے کی باتیں کی جائیں، لوگوں کو لوٹنے کی باتیں کی جائیں، ظلم و زیادتی کی باتیں کی جائیں، تو وہاں پر ہم دل کھول کے ہمارا موجود ہوتے ہیں، ہر چیز کی ہم قربانی دیتے ہیں۔ لیکن جہاں پر انسان کے ادھیکاروں کی بات کی جائے، ہیومن رائٹس کی بات کی جائے، تو وہاں بولنے والوں کی آواز صرف چند زبانیں ہوتی ہیں، کچھ سر ہوتے ہیں جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ عزیز نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ان تمام لوگوں سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ وہ اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھیں، وہ اس سمسیا کو اپنی سمسیا سمجھیں اور اس کے لیے اسی طرح سے اٹھ کھڑے ہوں جیسے وہ اپنے گھر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ جس طرح ان کے خود کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے،
उस वक्त वो जिस तरह से खड़े होते हैं, आज अब दूसरे भाई के ऊपर जब परेशानी है तो आज उनको खड़ा होना होगा। वरना मुझसे पहले ये बात आ चुकी है, जर्मनी में जिस वक्त फासिज्म बढ़ता चला जा रहा था, जब उन्होंने कम्युनिस्ट लोगों के ऊपर हाथ डाला तो दूसरे लोग खामोश रहे, ये सोचकर खामोश रहे कि हम तो कम्युनिस्ट नहीं हैं, हमको इस बात से कोई मतलब नहीं कि आज ये फासिस्ट किन लोगों के ऊपर हाथ डाल रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने दूसरे गिरोह पर हाथ डाला तो भी तीसरा गिरोह खामोश था, ये सोचकर कि ये हमारी समस्या नहीं है, हम लोग बचे हुए हैं। लेकिन जब उनके कंधों पर हाथ डाला गया, उनकी गर्बानों पर हाथ डाला गया, तो वो अपने चारों तरफ उन्होंने देखा कि आज उनकी आवाज के साथ, उनके जुल्म के खिलाफ बोलने वाली कोई जबान मौजूद नहीं है, उनके लिए बोलने वाला कोई मौजूद नहीं है। तो अगर आज हम न जागे, अगर आज हमने अपनी जबान न खोली, तो वो वक्त दूर नहीं जबकि हमारी समस्याओं के लिए बोलने वाला कोई न होगा। जब हमारे बच्चों के लिए, हमारी नई पीढ़ी के लिए उनके ऊपर जो जुल्म होगा, उनको जो कुचला जाएगा, उनको मसला जाएगा, उनके लिए उनकी आहों को सुनने वाला, उनके जख्मों पर मरहम लगाने वाला कोई मौजूद न होगा। एक शायर ने बात कही है कि मैं वो नहीं कि बात रवा हो कि ना रवा, मैं वो नहीं कि बात रवा हो कि ना रवा, हर फैसले में अपने कबीले का साथ दूं। ये कैसी अंधी देशभक्ति है हमारी कि हम जुल्म पर खामोश हैं। ये कैसी रियासत, ये कैसी सियासत है, ये कैसी हुकूमत है हमारी, जो सब कुछ जानने के बावजूद, सब कुछ देखने के बावजूद वो ये जानते हैं कि ये बेगुनाह है। हमारा मीडिया ये जानता है कि लोग बेगुनाह हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखेंगे सबकी जबानों पर ताले लगे हुए हैं, सब खामोश हैं, सब अपनी आंखों को बंद किए गेम को देखे जा रहे हैं। हम इस मंच से बात कहना चाहते हैं कि हमारी हुकूमत इस गेम को खेलना बंद करे, इस खेल को वो बंद करे, बेगुनाहों को वो रिहा करे, और जो जुल्म ज्यादती का जो सिलसिला चल रहा है, जो निर्दोष लोगों के खिलाफ जो अत्याचार किया जा रहा है, उस अत्याचार को बंद होना चाहिए। हम जब पुलिस थानों में जाते हैं तो वहां दरवाजों पर बड़े बड़े अक्षरों में ये बात लिखी होती है कि आम जन में विश्वास और मुजरिमों में भय। लेकिन हम गौर करके देखें, सच बोल के देखें कि क्या वाकई यही मामला है या इसके बरक्स स्थिति है, इसके विपरीत है स्थिति। आज कौन डरता है पुलिस वालों से? कोई मुजरिम पुलिस वालों से डरता है? खुद पुलिस वालों से आप ये बात पूछ कर देखिए कि कितने मुजरिम हैं जो उनके डंडे से डरते हैं। उनके डंडे हमेशा किन लोगों पर चलते हैं? उनकी बंदूकों के निशाने पर हमेशा कौन लोग होते हैं? कभी मुजरिमों पर न उनकी लाठियां चली हैं, न उनकी बंदूकें चली हैं। हमेशा वो लोग जो कि सच बोलते हैं, जुर्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो वहां पर उनके डंडे भी चलते हैं और वहां पर उनकी बंदूकें भी चलती हैं। लेकिन जब कभी मुजरिमों ने अपने सरों को उठाया है, जब कभी जुल्म ने अपनी आवाज को उठाया है, तो वहां पर तमाम मिशनरी खामोशी के साथ उसको देखती रही, खामोशी के साथ उस सिलसिले को उन्होंने देखा है और उस सिलसिले को उन्होंने बढ़ाया है। आज जुर्म जेलों के अंदर बढ़ रहा है, जेलों के अंदर उसको परवरिश दी जा रही है, हुकूमत मुजरिमों को पाल रही है, और सिर्फ पाल नहीं रही बल्कि हुकूमत के कुर्सियों पर उन लोगों को बिठाया जा रहा है जो सबसे ज्यादा, सबसे बड़े मुजरिम हो। आप उठाकर देखिए उन तमाम लोगों की फाइलों को जो कि संसद के अंदर बैठे हुए हैं या उन लोगों की हिमायत कर रहे हैं, तो उनमें एक बड़ी तादाद उन लोगों की जिनके ऊपर 100 से ज्यादा केसेस हैं, 100 से ज्यादा केसेस हैं, जिनमें मर्डर के केसेस भी हैं, रेप केसेस भी हैं और किसी को अगवा करने के केसेस भी हैं। इतने तमाम केसेस लगने के बावजूद वो लोग अगर हमारे देश में इख्तिदार पर हैं, तो ये हमारे देश के लिए सोचने की, ये हमारे आवाम के लिए सोचने की बात है कि हम किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, हम किन लोगों को अपना इख्तिदार सौंप रहे हैं, हम किन लोगों की गुलामी इख्तियार कर रहे हैं। अगर ये दौर हम इसी तरह से चलता रहा तो फिर वो वापस नहीं कि हम लोग उसी तरह से गुलाम बन जाएं जिस तरह की 200 साल की गुलामी हम देख चुके हैं। 1947 को ये देश आजाद तो हुआ, लेकिन वो सिर्फ कागजों में आजाद हुआ था। हकीकत में इसको आजादी दिलाना अभी बाकी है। वो आजादी जिस आजादी के नतीजे में किसी गरीब के हुकूक को पामाल न किया जाए, उससे उसके अधिकारों को न छीना जाए, जब तक ये आजादी इस मुल्क में ना आए उस वक्त तक ये मुल्क गुलाम है। आज भी कई लोगों का गुलाम है, आज अमेरिका का गुलाम है, इजराइल का गुलाम है और कई ऐसे बड़े देश हैं जिनके हमारा मुल्क गुलाम बना हुआ है। आज चाहे हमने हमारे मुल्क के लोगों को यहाँ पर बिठाया हुआ हो, लेकिन वो उन्हीं के इशारे पर काम करते हैं। वही पॉलिसी जो यहाँ पर नाफिज की जा रही है जो उनके लिए अच्छी है, और उसी पॉलिसी के तहत बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। वो लोग, वो नौजवान जो कि अच्छे तालीम याफ्ता है, जो कि अच्छी तालीम हासिल करके अपना कैरियर संवारना चाहते हैं, अपने घर वालों का मुस्तकबिल अच्छा करना चाहते हैं, अपने कौम को, अपने समाज को, अपने मुल्क को तरक्की के दहाने पर ले जाना चाहते हैं, कामयाबी से हमकिनार करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि उन्हीं नौजवानों को बड़ी बेदर्दी के साथ, बड़ी बेरहमी के साथ जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और एक दो दिन के लिए नहीं, बल्कि आप सुन चुके हैं, बार बार ये बात आ रही है आपके सामने कि सालों तक उनको जेलों के अंदर रखा जाता है। और हैरत इस बात पर होती है
कि उन लोगों ने जो अपनी नौजवानी का जो दौर जेलों के अंदर बिताया है, ऐसा नहीं कि सजा उन्होंने काटी हो। अगर ये बात भी होती कि अदालत ने उनको सजा दे दी है कि इनको 3 साल की सजा, इनको 10 साल की सजा, तो भी हम कुछ मुतमईन होते। लेकिन हमें ताज्जुब होता है, हैरत होती है कि अभी तक उनका केस पूरा नहीं हुआ है, अभी ट्रायल चल रही है और उनको 14-14 साल, 20-20 साल जेलों के अंदर बिताने पड़ रहे हैं। हम देखेंगे ये कौन सा इंसाफ है। इस्लाम ये बात कहता है कि जब तक किसी फर्द के ऊपर जुर्म साबित न हो जाए, उस शख्स के ऊपर हाथ न डाला जाए, उसको गिरफ्तार न किया जाए, जब तक पूरे सबूत मौजूद ना हो। आज हम देखें कि सबूत मौजूद नहीं है, जुर्म साबित नहीं हुआ है, उसके बावजूद 14-14 साल जेल के पीछे नौजवान अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। और जब जेल से निकलकर वो बाहर आते हैं तो उनको पहचानने वाला कोई मौजूद नहीं होता है। तमाम रिश्ते उनसे खत्म कर दिए जाते हैं, उस फर्द को समाज से काट दिया जाता है, ये जिंदगी उसकी बना दी जाती है। और हम देखें कि मीडिया किस तरह से टीवी के ऊपर उनके चेहरों को नुमाया करता है और बाकायदा ये बात जोर से कही जाती है कि आप पहचानिए आतंक के चेहरे को, दहशत के चेहरे को आप पहचानिए। हम देखें किस तरह से उसका सोशली मर्डर किया जाता है, उसका कत्ल किया जाता है, वो एक जिंदा लाश बनकर फिर समाज में रहता है। तो हम हुकूमत से भी और समाज के उन तमाम लोगों से जो कि इंसाफ को पसंद करते हैं, जो कि जुल्म को नापसंद करते हैं, उन तमाम लोगों से ये बात कहते हैं कि वो जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें। हफीज मेठी ने यह बात कही थी कि जब सबके लब सिल जाएंगे, हाथों से कलम छिन जाएंगे, जब सबके लब सिल जाएंगे, हाथों से कलम छिन जाएंगे, बातिल से लोहा लेने का ऐलान करेंगी जंजीरें। अजीज नौजवान दोस्तों, हमको पूरे अज़्म के साथ, पूरी हिम्मत के साथ और पूरे हौसले के साथ खड़ा होने की जरूरत है इस मुल्क को बचाने के लिए। अगर हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अगर इस मुल्क के लिए हमारे दिलों के अंदर कोई जज्बा मौजूद है, अगर इस मुल्क को हम तरक्की होता हुआ देखना चाहते हैं, तो फिर जरूरत इस बात की है कि हम अपनी आंखों से पट्टी को हटाएं, अपनी आंखों पर जो चश्मा हमने चढ़ाया हुआ है उस चश्मे को हम उतारें और सच्चाई को देखने के हम आदी बने, सच्चाई को सुनना पसंद करें, सच्चाई को कहना पसंद करें। आज हमारे मुल्क की बड़ी तादाद उन लोगों पर मुश्तमिल है जो झूठ को पसंद करती है, इस वजह से कि उसके मुल्क के सियासतदान उस बात को कह रहे होते हैं, उस मुल्क का प्रधानमंत्री उसकी बात को कह रहा होता है। हम इस वजह से नहीं, अंधी मोहब्बत में, अंधी अकीदत में, अंधी देशभक्ति में हर गलत चीज को सही मानते हुए न चले जाएं, बल्कि हम सच को सच कहना सीखें, सच पर अपने लब को खोलना सीखें और झूठी बात के लिए इंकार करना हम सीखें। अगर ये बात हमने ना कही, अगर ये बात हमने सच को सुनना हमने पसंद नहीं किया, तो फिर हमारा वक्त, हमारे ऊपर भी जुल्म का कोड़ा बरसे, वो वक्त दूर नहीं है। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा। मुझसे एक दफा जब कोटा सेंट्रल जेल में एक प्रोग्राम था, वहां मैंने देखा कि कैदियों में एक बड़ी तादाद नौजवानों की थी। एक साहब ने सवाल किया गुफ्तगू के दौरान कि जेलों में इतनी बड़ी तादाद नौजवानों की क्यों है, और इनमें अक्सर वो हैं जिनके ऊपर कोई सबूत नहीं है, बेगुनाह है। तो उनसे मैंने एक बात कही कि जब सियासत में, जब हुकूमत में अच्छे लोग होते हैं तो जेल की सलाखों के पीछे गुनहगार होते हैं, बुरे लोग होते हैं, और जब हुकूमत के इख्तिदार वाले लोग, हुकूमत में बुरे लोग होते हैं, भ्रष्ट लोग होते हैं, तो जो समाज के अच्छे लोग होते हैं, समाज के जो ईमानदार लोग होते हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। ये पूरी इंसानी तारीख है। आप पूरी इंसानी तारीख को उठाकर देखिए कि हर दौर में ऐसा हुआ है। जब इख्तिदार में जालिम रहे हैं तो बेगुनाह जेल के सलाखों के पीछे रहे हैं, और जब इख्तिदार अमन पसंद लोगों के हाथ में आया है तो फिर समाज के भ्रष्ट लोगों को समाज में कोई जगह नहीं मिली। लिहाजा हमको ये बात समझने की जरूरत है कि हम इख्तिदार किन लोगों के हाथ में सौंपें, हम कैसे लोगों को उस कुर्सी तक पहुंचाएं जिसको हम पसंद करते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं। और आखिरी बात मैं कहकर अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा कि हमारा ये जो मुल्क है जिससे हम मोहब्बत करते हैं, आज इस मुल्क में ऐसा नहीं कि मुसलमान माइनॉरिटी में हो, मुसलमान कमजोर हो, बल्कि हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा अगर कोई माइनॉरिटी में है, सबसे ज्यादा अगर कोई कमजोर है तो वो इंसाफ है, वो अमन है, वो अमान है। लिहाजा हमको वापस उस इंसाफ को मजबूत करने के लिए, उस इंसाफ की ताकत को, अदल की ताकत को, हक की आवाज को बुलंद करने के लिए उठना है, खड़ा होना है। और इसी के साथ मैं एक बार फिर आप तमाम हज़रात का शुक्रिया करता हूं कि एसआईओ की आवाज पर आप सब लोग यहाँ पर आए, आप सबने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस मुहिम को कामयाब करे और वो तमाम लोग जो बेगुनाह हैं, जेलों के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उन सब की रिहाई हो, वो सब अपनी अच्छी जिंदगी गुजारना शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम।